क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक महंगा गेम है और आप तमाम लोग जानते हैं कि हर स्पोर्ट्स के लिए फिटनेस ज़रूरी होता है। तो बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है, इसके लिए आपको एक्सरसाइज के साथ साथ आपको डाइट भी मेंटेन करनी पड़ती है। जैसा कि फाजिल भाई ने कहा कि यहाँ पॉलिटिक्स भी है और लोग इसके अंदर ऐसे हो गए हैं कि मतलब चीटिंग होती है, पॉलिटिक्स होती है, इंकरेजमेंट नहीं मिलता। जो सही टैलेंट पर्सन होता है इसको इंकरेजमेंट नहीं मिलता। लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है यहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी जब स्टेज पे आते हैं तो जब बॉडी शो होता है तो आपके मसल से मालूम हो जाता है कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। स्पीच एंड फैक्ट्स एंड स्पोर्ट्स कल्चर एवरी लेवल में आना चाहिए। इट विल कम, डेफिनेटली इट विल कम, बिकॉज every level it has come. Government also realizing now, like industries and single channel में करना चाह रहे, then I think the course of time में वो भी आएगा. Now I request basketball clinic every year. Basketball भी हम बहुत सिखाते हैं, हमारे पास basketball clinic रखते हैं. We conduct Barack Obama tournament and he is a great sportsman, अच्छा basketball player है. Every day he plays 1 hour whenever he is in White House. ऐसा is a big model. एंड हमारा शमशुद्दीन साहब इंडिया को के लिए बहुत साल बास्केटबॉल में कोचिंग करे ऑल ओवर इंडिया में। सो मेनी इंटरनेशनल प्लेयर को कोचेस सबको प्रोड्यूस करे। सर प्लीज कम टू द डांस एंड स्पीक ऑन योर एक्सपीरियंस लास्ट 40 years. Ramnatari Sahab was there in Punjab, he started on escape to develop old city and appointed a number of coaches, part-time coaches, and myself, Salam Sahab, were attached to the escape. And so many sons in football, volleyball, basketball, tennis, and every money was continued making. Now after Ramnatari Sahab retired from that scheme, that's kind of gone. Now main house in sports authority Ahmedabad, they have selected 6 games in that time: athletics, football, volleyball, basketball, and hockey. And all the players were selected throughout the Andhra country. And leading coaches of the project, the Salam Sahab in perform. Athletics, Serena Ryan, Keshavarti, volleyball, Chinaswati, hockey, Abharnam, basketball, myself, and number of players produced from this hostel and the our country. Even this Balguna also football, the secretary they are from hostel. Now that the scheme has gone, the main hostel is on the license. Already asked Hyderabad Cricket Association and also BCCA from last 3 years, but they are also nice people. But it's taking time because the labor role करना ground को, because multi-purpose games है वहाँ पूरे एक games करना बोल तो next day itself they called me to their office and immediately I told them who the manufacturers in Bombay and all. You don't give check to us, give it to them. And within 15 days we got a mechanized roller worth of 88 lakhs. It is some corporates are very spontaneous, sir. And some corporates they just clap and but they are not really. I think it may take time. Sports is not again score subject. They think that sports is a pastime only rich people will play, not बच्चों को अभी पढ़ने का है वैसा बोल के. But celebrities are here. We have to convince them. Sports is necessary for health. So that way we have to convince. We make a committee. Just now Utsamuddin साहब बोलते we make a one good team. And we are CM साहब भी बहुत encourage करना चाह रहे हैं. स्पोर्ट्स के लिए बहुत करना चाह रहे हैं, then we have to convince them. And single channel बना रहे हैं, everything is set right हो जाता है. Government already given us जीवो, every school child has to take up sports. मगर sports culture every principal parents सब में है ना. मैं वो जीवो लेके मासा टाइम में 50 स्कूल को गया मैं. सब ऐसा है हम लोग सिखाते 1 रुपए में 2 रुपए में और कम में फ्री में भी कराते बच्चे हैं तो फर्स्ट थिंग द प्रिंसिपल टेल अरे बाबू बाजू स्कूल में 80% मार्क्स आ रहे भाई. अब हमारे बच्चे आपने आए तो फिर वो कम हो जाते हैं. देन वो कंपटीशन. नेक्स्ट इज एवरी सेकंड मंथ में पेरेंट्स एंड मैनेजमेंट का मीटिंग्स होते हैं स्कूल की. नो पेरेंट टॉक अबाउट स्पोर्ट्स. अब हमारा बच्चा 3:30 के बाद 8 बजे का पढ़ाओ सब IIT कराने का है, इंजीनियरिंग वैसा माइंडसेट से थोड़ा खुलना, बिकॉज इतना बड़ा डायबिटीज सेंटर बन गया कंट्री है. इट्स वेरी अलार्मिंग. बच्चों में भी बहुत मुश्किल है ऐसा है तो. Then all the sportsmen together, we work together. ये meeting के बाद फिर मिलेंगे. I will coordinate with you. We'll have one more meeting in our foundation. Then together we'll make sir. Hyderabad is one of the biggest sports center already है. थोड़ा channelize करने का है. आप लोगों का celebrity सामने आए तो definitely we will have sir. स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए आज की जो गैदरिंग है मैं उसके लिए साई बाबा साहब और स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन की टीम को मुबारकबाद दूंगा कि आज हमको महसूस हुआ कि कुछ तो है, कोई लोग हैं जो ओल्ड सिटी के लिए सोचते हैं
यकीनन इसमें से बेशतर लोगों का ताल्लुक ओल्ड सिटी से है, स्पोर्ट्स से है, लेकिन एज ए टीम वर्क कभी भी हम लोग काम नहीं करें। हम लोग मिल बैठ के कुछ सोच के कुछ प्लान बना के उस पर एक्शन नहीं लिए, ठीक है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब ऐसे चेहरे जो स्टार्स यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी मदद से, इनके गाइडेंस से और इनको देखकर नौजवान नस्ल ओल्ड सिटी की जो लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होती थी, आज फिर भी एजुकेशन की तरफ राग़िब है, लेकिन साथ ही साथ उनको एजुकेशन के साथ साथ अगर स्पोर्ट्स में हम इन्वॉल्व करें तो मैं समझता हूँ उनका, उनके ख़ानदान का, ओल्ड सिटी का और हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। There are about 20,000 foreign students are studying in Hyderabad city. More than 20. Akhtar Ali sir, the professor in Osmania University, deal with the foreign students. Please speak, sir. Thank you, Mr. Sai Baba. Good afternoon to all. Yes, I am taking care of some foreign students. I am professor of geography, but at the same time I was a sportsman. I am a sportsman. I used to play football in my school, also cricket. But then discrimination, all that sports persons have talked about, even I have a bitter experience in sports. But then I have not left my sports. And just before me, the speaker, I was prepared to talk about that word. पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे ना, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब. So that was the culture which was there, but then that has been proved wrong because many people who are doing sports, they are getting into job, they are also well settled. So then that concept is gone. Only thing is now, government has to support, and most important, which is making the sportsmen not come forward or suppressing them, is that this politics of caste, creed, and rich class, poor class, all these societies and discrimination. If we could overcome that discrimination, I'm sure we have got best of the best talented persons in our city, and in particular about old city, because this discrimination is prevailing in that part of the city. But very important. One thing is playing a sports to take the name of the country in heights across globe. Other one is for their better health. और इतने स्टार्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, फिर भी यहाँ पर स्पोर्ट्स के ताल्लुक से नर्वस नुमा बातचीत हो रही है। मैं साई बाबा के नाम एक शेर पेश करना चाहता हूँ। सहरा में भी उम्मीद का दामन न छोड़िए, पानी की हो तलाश तो पत्थर नहीं छोड़िए। तो सबसे पहले हमारे स्कूल्स के जो प्रॉब्लम स्पोर्ट्स के ताल्लुक से हैं, फिर स्पेशली माइनॉरिटी गर्ल्स, उसके ताल्लुक से कुछ भी नहीं कहा गया कि उन लोगों को ग्राउंड पे कैसा लाना चाहिए। सबसे पहली बात, पहले तो माइनॉरिटी के गर्ल्स को पढ़ने के लिए मौका नहीं है, फिर उन लोगों को जो पर्दे में होते हैं उनको स्पोर्ट्स में कैसा लाना चाहिए। आधे से ज़्यादा गर्ल्स, मुस्लिम गर्ल्स तो पर्दे में होते हैं, फिर उनके माँ बाप की इजाज़त, फिर उनके लिए इंटरेस्ट। देखिए भाई, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए या तो शौक़ होना चाहिए या तो खौफ होना चाहिए। शौक़ की उम्र 10 साल 11 साल के बाद आती है, लेकिन खौफ की उम्र जो है मैं समझता हूँ उससे पहले होती है। अगर गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को कंपलसरी कर दें, पासिंग मार्क्स जिस तरह हासिल करते हैं स्पोर्ट्स में भी पासिंग मार्क्स लाने के लिए लाजमी कर दें, तो फिर हर माँ बाप, हर बच्चा, हर लड़की, हर लड़का मजबूर हो जाता है स्पोर्ट्स में खेलने के बाद। फंक्शन में जाने का थैंक यू वेरी मच सर, द ग्रेट मोटिवेटर फॉर द स्पोर्ट्स सेक्टर ऑफ हैदराबाद, द्रोणाचार्य इज doing the hall. Hi, sir. Now, other gentlemen is a private school federations के है हकीम साहब, यानी हकीम साहब आए सो इधर सर। लास्ट टाइम भी हमारा अटेंड करे थे स्कूल्स एंड स्पोर्ट्स कल्चर बोल के, यही होटल में हम लोग लास्ट ईयर सेमिनार करे थे। एम ए हकीम साहब, प्लीज कम एंड यूर वैल्यूबल एडवाइस सर। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। शेरों की बारी आई तो एक आधा शेर मैं भी बोलता चलूँ, और ख़ास तौर पे श्री साई बाबा साहब के नाम, कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। साई बाबा साहब, आप अकेले हैं मत समझिए, हम सब आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। ऐसी बहुत जल्द
हम एक बड़े कारवां में तब्दील होंगे। रही बात तरह तरह की गौर और फिक्र सामने आई कि कैसा हम बच्चों को इन्वॉल्व करें, मगर सब में पहले हम आज के सिनेरियो पे अगर हमारी नज़र डालें तो हम कहाँ लैग कर रहे हैं और स्पोर्ट्स को छोड़ने से हमारा क्या नुकसान हो रहा। अगर हम इसका एहसास दिला दें हमारी कम्युनिटी को तो बहुत जल्द वो कम्युनिटी पलट के इस नुकसान को दूर करने की खातिर शायद स्पोर्ट्स को ज्वाइन करें। चंद महीने पहले का वाकया है कि दिल्ली में एक छोटा सा एक्सीडेंट होता और कार को थोड़ी सी खरोश लगती और उसके बाद उस लड़के को मार मार के ख़त्म कर दिया। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आज हमारे अंदर एरोगेंस बढ़ गया, हमारे अंदर शॉर्ट साइटेडनेस बढ़ गया, आज हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो गया। तो ये जो पेशेंस है, ये जो टॉलरेंस है, ये ब्रॉड माइंडेडनेस है, ये किताबों से नहीं मिलता, ये जो है सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन से नहीं मिलता। जब तक कि हम ग्राउंड पे एज ए टीम नहीं पहुंचते, जब तक कि हम कोई गेम को एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ नहीं खेलते, तब तक जो है हमारे अंदर का शॉर्ट साइटेडनेस, हमारे अंदर का एरोगेंस, हमारे अंदर का इम्पेशेंस खत्म नहीं हो सकता। तो इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम हमारी कम्युनिटी को सब में पहले एजुकेट करें कि आज जो बच्चे के अंदर जो ड्रॉबैक्स है, आज जो बच्चा छोटी सी नाकामी पे बड़ा मायूस होकर खुदकशी कर ले रहा, आज बच्चा जो है अपनी कामयाबी को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहा, बल्कि वो बहुत ही कोहेरेंट हो जा रहा, अपने सिर्फ अपने लिए जीने का आदी हो जा रहा नहीं, और उससे हट के उसके अंदर कोई फिक्र डेवलप नहीं हो रही। तो इन चीज़ों से निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता होता, वो होता स्पोर्ट्स। और जब तक हम बच्चे को घर से निकल के एक अजीब परसेप्शन हमारी कम्युनिटी में आ गया, हम नेबरहुड के सारे बच्चों को खराब समझते और हमारे अपने बच्चे को अच्छा समझते, और हम अपने बच्चे को अपने फ्लैट के बाहर निकलने नहीं देते, अपने घर के बाहर नहीं निकलने देते, और सिर्फ हम यही समझते कि हमारा बच्चा जो हमारे फ्लैट के बाहर जाएगा, हमारे घर के बाहर जाएगा, तो उसके अंदर बैड हैबिट्स निकलते होंगे और मैं खराब बन जाएगा। तो ये परसेप्शन से भी हमारे बाहर निकलना है। तब तक उन्हें बाहर नहीं निकलेगा, तब तक अपने पीयर ग्रुप से नहीं मिलेगा और अपनी मर्जी से नहीं मिलेगा। उन्हें क्लासरूम में मिल रहा, पीयर ग्रुप से जबरदस्ती मिल रहा, खुशी से नहीं मिल रहा है। आप बोल रहे होंगे सुबह में 8 बजे से शाम में 6 बजे तक उन्हें पीयर ग्रुप के साथ रह रहा, मगर वो अपनी खुशी से नहीं रह रहा पीयर ग्रुप के साथ। पीयर ग्रुप के साथ उन्हें अगर हाफ एन आवर अपनी खुशी से रहेगा तो उसके अंदर ग्रेट चेंजेस आप फील करेंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म से सब में पहले जो है हम एक तरफ मार्क्स देने की बात कर रहे हैं, हम एक तरफ जो है बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं, हम एक तरफ गवर्नमेंट को जो है पुश करने की बात कर रहे हैं। ये सब हमारे दूसरे मीन्स है। पहला मीन तो ये होना चाहिए कि पेरेंट्स को ये एहसास दिलाने की जरूरत है कि बच्चा जब पीयर ग्रुप में जाएगा अपनी खुशी से, तो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज डेवलप होंगी, और सब में बड़ी क्वालिटी जो डेवलप होंगी वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होंगी। और जब तक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं आएगी, बाकी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस आज के प्रोग्राम है जिसमें यहाँ पर बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, ट्रेस पर्सन एंड स्कूल्स के लोग हैं, तो मैं सिर्फ 2-3 बातें कर रखूँगा। सबसे पहले स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन के तहत जो एक स्पोर्ट्स का एनजीओ है साईं बाबा साहब का, उनका स्कूल वालों की वजह से मुबारक देते हुए उनको सपोर्ट करूँगा कि वो ओवल सिटी के लिए सोच रहे हैं। अब यहाँ बहुत से सीनियर्स हैं, मैं बात आज के दौर की अगर करूँ तो सबसे पहले अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो आज के जो बच्चे हैं, खासतौर पर न्यू जनरेशन के, वो बच्चों में पहले के बच्चे खिलौने से, टॉय से खेलते थे, आज के बच्चे रिमोट या मोबाइल से खेलेंगे। अब छोटे बच्चे से पूछिए कि आप गेम कहाँ खेलते हैं, तो इमीडिएटली कहता है कि मैं मदर के मोबाइल पे खेलता हूँ। बात यहाँ पर ग्राउंड्स की आई, अब नए बच्चे जो आ रहे हैं उनसे गेम की बात पूछ लीजिए आप अपने नवासे से, पोतरे से, कहाँ चलता है, तो इमीडिएटली बता फोन। तो इस तरीके से नए बच्चों का प्ले ग्राउंड एक मोबाइल का फोन बन गया है, आज का फैक्ट है। अब देखिए, अब क्योंकि बात यहाँ पर ग्राउंड की बहुत सी चीजों की आई तो मैं इसको बताना जरूरी समझा। दूसरी बात, स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन के तहत बहुत सी चीजों को प्रमोट करना है, तो मैं यहाँ जनाब एक बूस्टर मिशन स्कूल के हवाले से बात करूंगा कि ओल्ड सिटी के कई स्कूल थे जो मुख्तलिफ अंदाज में काम कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड में, और इसके साथ ही स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है। तो बूस्टर मिशन स्कूल कालपत्थर का एक ऐसा स्कूल है जिससे जनाब शाकिर अहमद साहब जुड़े हुए हैं, और साईं बाबा साहब का वो हर साल एक कोचिंग के तहत बोस्टन कप क्रिकेट टूर्नामेंट रखते हैं। तो ये क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन का जो सपोर्ट होता है
उसकी बात करते चलूँ कि एक टूर्नामेंट करने के लिए जो सबसे एक्सपेंसिव है, तो साईं बाबा साहब उसको 100 से ज़्यादा बाल खर्चे हो वो उसको बर्दाश्त करते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं। इस तरीके से स्पोर्ट्स का एक इवेंट हो चुका, एनुअल इवेंट। तो ऐसे जब बच्चों को जैसा कि एग्जाम होगा तो वो एग्जाम के लिए पढ़ेगा, अगर वो टूर्नामेंट होगा तो उसकी प्रैक्टिस करेगा। तो स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए टूर्नामेंट भी जरूरी होता है। टूर्नामेंट मुझे कप लाना है या जीतना है तो वो प्रैक्टिस करेगा, तो एग्जाम में मुझे पास होना है, मार्क्स लाना है तो वो पढ़ेगा। इस तरीके से यहाँ मुख्तलिफ क्योंकि इंडोर गेम्स के भी हैं, आउटडोर गेम्स के भी हैं, और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, एथलेटिक्स भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने अपने फील्ड में उसको डेवलप करने के लिए जिस तरह से बोस्टन कप एक टूर्नामेंट रख रहा है, इसी तरीके से टूर्नामेंट रखेंगे तो नए नए दिन में टैलेंट होगा तो उससे भी हमको कम मिल सकेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराना चाह रहा हूँ। मैं फॉर्मर क्रिकेटर मोमिन पटेल, मेरा कोचिंग एकेडमी है मलकपेट में। वैसे मैं डायरेक्ट स्पोर्ट्स सुजाता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मुरादाबाद में, और उसके बाद मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि साईं बाबा से न सिर्फ ओल्ड सिटी या न्यू सिटी में नहीं, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में सुजाता स्कूल है मेरा, वहाँ पे मैं जहाँ पे मैं डायरेक्ट स्पोर्ट्स की कोच हूँ क्रिकेट का। तो उन्होंने वहाँ पे 40 किलोमीटर्स वहाँ पे आके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को इनकरेज की है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसी अजीम शख्सियत को करूँ। ये वो शख्स है साहब, एक मासूम बच्चे की मुस्कुराहट से आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि यह हिंदू है या मुसलमान है, मजहब से कुछ नहीं, एक मुस्कुराहट की रहती है। तो साईं बाबा साहब एक मुस्कुराहट है इंसानी। वैसे क्रिकेटर होने की हैसियत से मेरे पास भी बहुत सारे पोटेंशियल और टैलेंट है उस सिटी में। Good afternoon to everyone. My best friend Sai Baba, he has contributed a lot for the development of sports, especially for poor children. But there's so much of talent. I think Farooq Bhai and Pervez also will agree with me. And I have my guru, Rehmat Beg Sahab. He is one of the finest coaches I've seen. My father was a great coach, Bhupati. The talent which we have in the whole city, I think if you just spot the talent and give them all the encouragement, not only in football but cricket and other games also, they can definitely come up. And we have proved it. I can totally, I hope Sai Baba will agree with me. When I became a selector, then Sai Baba was the manager for the rest of India. He is the first manager to be appointed from our Hyderabad. And that year we won all the tournaments in India. Can you imagine, after 50 years of, they couldn't win. Even my father was a selector, they all couldn't win. Farooq Bhai was there. There was a player who was being dropped by the selectors, and that was Arshad Ayub, and they thought that he's not at all fit to be in the team. Then what I was saying that, let it be old city or any city, people who are having talent, they should be given chance on the basis of performance. He should be in the team. And I fought like anything for him. And the same year, he was included in the state team. He played for India. And he won the Ranji Trophy after 50 years. Can we imagine 50 years of cricket, no one, they were not able to win. It was the talent of the whole city. Very good afternoon to one and all. Myself, Waqar Ahmad, correspondent of the Paragon High School, Patepalli. Today I got the privilege to hear the coach, the sports person, and in fact I have a little knowledge in sports. During my childhood, we don't have the facilities, and though we are a bit interested in cricket and got the opportunity to play gully cricket, inspired by that time cricketers. What I thought is, the basic thing what we need to do is the motivation. Actually, previous to me the speaker said, again I am repeating third time, कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब. तो आज बच्चों में जो है ये चीज़ we have to bring to the knowledge of the student that there are wide scopes if they play good. Actually बच्चों को जो है खेल स्पोर्ट जो है एज ए फन टाइम गुजारने के लिए खेलते हैं. अगर हम इसको स्कोप बताएं कि खेलने से जो है
there are opportunities, there are the scopes in railways or Indian Air Force, we can say, or banks, and Motesham sir knows very well about it, that there are opportunities there, but I don't know that there are some loopholes in the system. तो उसके बारे में अगर हम स्कोप्स बच्चों को बताएं, उसके लिए स्कूल्स में जाएं, एक टीम बनाएं, वो टीम जाकर जो है स्कूल्स में सेमिनार कंडक्ट करें और बच्चों को बताएं कि भाई खेलने से जो है पढ़ने से साथ जिस तरह आपका फ्यूचर बन सकता है, यहाँ पर खेलने से भी आपका नासिर मुस्तकबिल बनता, जबकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो सकता है. Time is running, and I think an excellent advice by different celebrities and coaches. And the government of Telangana, KCR Saab, is very much keen to promote sports. Then we have to go and channelize the things. आप लोगों का क्या है पेपर में रखिए. Then through sports authority, the authority is there. Sports authority of Telangana is there. From there is also a very good advisor who himself a sportsman है. Papa Rao साहब है, IAS officer है. He is an advisor for sports for Telangana, for KCR साहब को. Other day last week he visited our sports coaching foundation. Visit करे थे बहुत 5 मिनट के लिए आके 1.5 घंटा बैठा हूँ. उन्हें एक ही बात बोला, बोलता तारीफ की चीज है अपना पूरा विराव रिस्पॉन्स होता है. उन्हें पूरा वर्ल्ड फिरा में उन्हें खुद ओलंपियन है. एक क्वेश्चन में इज रिप्रेजेंट ओलंपिक, वन ऑफ द टॉप आईएएस ऑफिसर्स है, चीफ सेक्रेटरी था. केसीआर साहब